So in the previous session, we started with our conversation on the analyze phase of Six Sigma, where we said that this is our first effort to look at y as a function of x. यहीं से हमने potential factors identify करना शुरू किया. So we set out to identify the possible contributors and because they were शायद वाले factors, we can't bet our neck based on potential factors. तो हमने इसको statistically validate करने का सोचा. Using something that is referred to as hypothesis testing. We said hypothesis हमेशा बाइनरी होता है, या तो HO होगा जिसको हम null hypothesis कहते हैं, या HA होगा जिसको हम alternate hypothesis कहते हैं. So when you are looking at verifying so let's say I'm doing a project on handling time and I wanted to find out if process knowledge impacts my handling time or not. Null hypothesis हमेशा कहेगा X does not significantly impact Y. Alternate हमेशा कहेगा X significantly impacts. And the decision criteria जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि नल को एक्सेप्ट करें या अल्टरनेट को एक्सेप्ट करें is something that is referred to as p-value. We are saying that अगर p-value is greater than or equal to 0.05 हम नल एक्सेप्ट करेंगे, अगर p-value is less than 0.05 तो हम alternate accept करेंगे. Actually ये 0.05 comes from the alpha risk or alpha value and because हम हमेशा confidence level 95% इस्तेमाल करते हैं इसलिए ये alpha 5% या 0.05 होता है. अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करेंगे तो हमारा अल्फा वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. We also said that the test that we will use is dependent on the data type of my x and y. So in a situation where y is also continuous and x is also continuous, हमारे पास दो टेस्ट का ऑप्शन है. एक टेस्ट जिसको हम कोरिलेशन कहते हैं, एक टेस्ट जिसको हम रिग्रेशन कहते हैं. बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम रिग्रेशन ही इस्तेमाल करते हैं. और जो ग्राफ हम बनाएंगे और द ग्राफ दैट वी बिल्ड इन दिस केस इन CYCX इज रेफर्ड टू एज स्कैटर प्लॉट. सब लोग प्लीज अपना मिनी टैब ओपन कर लीजिए. If my project Y is C2 here, which is collections,
which is in dollars, and if I want to compare it against time on system, दोनों का दोनों continuous data, in that case I can either deploy the correlation or the regression. Let's try both, फिर समझते हैं कि कौन सा better है, क्यों better है, and all that. So I go to stats, I go to basic stats, correlation, and I'm choosing correlation. पहले Y collections, उसके बाद X toss. जब आप ओके प्रेस करेंगे तो पी वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए इफ यू सी यू रिसीव योर पी वैल्यू 0.05 से कंपेयर करिए, अगर 0.05 से छोटा है तो ऑल्टरनेट, 0.05 के बराबर है या उससे बड़ा है तो नल. यहाँ मेरा null hypothesis true. In the case of correlation, null says variables are independent, alternate बोलेगा variables are dependent. तो हमारा नल ट्रू हुआ, मतलब कलेक्शंस और टॉस दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. नोट द यूसेज ऑफ द वर्ड वेरिएबल हियर, आई एम नॉट कॉलिंग इट एक्स एंड वाई. यही सबसे बड़ा वीकनेस है कोरिलेशन टेस्ट का. कोरिलेशन डज नॉट आइडेंटिफाई किसकी वजह से, कौन सा फैक्टर है, कौन सा वाई है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है. सो कोरिलेशन टेस्ट डज नॉट आइडेंटिफाई कॉजालिटी. दैट इज वाई हम हमेशा रिग्रेशन टेस्ट करते हैं. एक और वैल्यू जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, जिसको हम आर वैल्यू कहते हैं या पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं. आर वैल्यू इज अ वैल्यू दैट वेरीज फ्रॉम +1 to -1 थ्रू 0. +1 के तरफ आने का मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, -1 की तरफ आने का मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन है, 0 के आसपास आने का मतलब है नो रिलेशनशिप. अब आप मुझे बताइए 0.05 कहाँ प्लॉट करूँ? समवेयर अराउंड हियर, नो, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है रिलेशनशिप. एवरीवन, ऑनलाइन टीम, एवरीवन विथ मी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोरिलेशन टेस्ट पी वैल्यू पब्लिश कर रहा है, जिसके बेसिस पे नल या ऑल्टरनेट डिसाइड कर रहे हैं. एक और वैल्यू पब्लिश कर रहा है जिसको अपन कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं. एक वीकनेस, कॉजालिटी is not known. That is why correlation is not preferred and we go towards regression. Correlation coefficient, where did we see correlation coefficient? Now I am doing the regression analysis, stats. Value that we see in the graph, that is my correlation coefficient. Now I am going to do regression. I am going to stats, regression, regression, fit regression model. Y मेरा collections versus let's say something like work.
प्रेस ओके, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। पहला काम करिए, पी वैल्यू चेक कीजिए। स्टेप 1, पहला काम क्या करना है? पी वैल्यू चेक करना है। 0.05 से छोटा है, मतलब ऑल्टरनेट ट्रू। नल बोलेगा x does not impact y, significantly alternate बोलेगा x impacts y significantly। मेरा alternate true आ गया। दूसरा चीज जो देखना है is r square value। R square, also referred to as coefficient of determination, explains percentage impact of x on y। y पे x की वजह से कितना असर हुआ, कितना परसेंट, कितना बता रहा है आर स्क्वायर? 99.404। ऑलमोस्ट पूरा। स्टेप नंबर 3, अगर दोनों ट्रू हो, ऑल्टरनेट आ जाए और आर स्क्वायर भी 62 से ऊपर आ जाए, तो तीसरा काम करना है, रिग्रेशन इक्वेशन करना है। कब चेक करना है? जब p वैल्यू ऑल्टरनेट आया और r स्क्वायर ग्रेटर देन 62 आया। कम आया तो देखना ही नहीं है। ये तो प्योर मैथ्स है। इफ यू सी द रिग्रेशन इक्वेशन, अगर मेरे पास एक टारगेट हो कलेक्शन का कि मुझे $10,000 का कलेक्शन करना है, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि वर्क कितना होना चाहिए। यस एवरीवन? या अगर मुझे पता है कि मैंने किसी बच्चे को $15,000 की फाइल एलोकेट की है, तो वो कितना कलेक्शन कर पाएगा ये भी निकल जाएगा। एंड हाउ श्योर आर यू? आई एम 99.40% श्योर, क्योंकि मेरा रिग्रेशन कितना आ रहा है? 99.4। सर इसमें जैसे आर स्क्वायर पब्लिश करना है, कोरिलेशन में आर वैल्यू पब्लिश करना है, तो दोनों में मतलब ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है आर स्क्वायर जो है इसका। तुम मुझसे बता रहे हो कि एक जगह तुम्हारा टेम्परेचर 102 आ रहा है, दूसरी जगह ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, दोनों की अलग अलग वैल्यूज हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर, ये वो अलग टेस्ट है, ये अलग टेस्ट है। दोनों में बेटर कौन है भूल जाओ। हर चीज का अपना महत्व है। कभी जिंदगी बचाने के लिए ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी था और कभी तुम्हारा टेम्परेचर बहुत जरूरी था। कह सकते हैं कि थर्मामीटर खराब होता है और ब्लड प्रेशर मशीन ज्यादा अच्छा होता नहीं होता है। अपनी अपनी उपयोगिता है। एवरीवन विथ मी सो फार? पढ़ना सर 62 वाला एक बार फिर से। 62 फिर से बोल दिया 62। 62 से ऊपर वाले को देखना है रिग्रेशन के लिए। वो पूछते हैं कि why 62% I guess। R square as a value essentially explains percentage impact of X on Y. So I am doing a project on collections. That's my project Y. I am trying to find out मेरा कोई भी factor, let's say time on system, let's say work, या कोई भी और फैक्टर मैं जानना चाहता हूँ कितना इम्पैक्ट है। क्यों जानना चाहता हूँ? जितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा उतना अच्छा है। तो अगर अज्यूम करिए कि मेरा टाइम ऑन सिस्टम का इम्पैक्ट 12% है, तो मैं टाइम ऑन सिस्टम को ठीक कर दूंगा तो भी कितना परसेंट इम्पैक्ट होगा? 12%।
और वर्क का इम्पैक्ट 99% है, बोला इसको तो छेड़ना ही पड़ेगा तुझे, नहीं करेगा तो तेरा प्रोजेक्ट वाइज में सुधार होगा ही। सो आइडियली इंडस्ट्री में एवरेज इस्तेमाल करते हैं 62%। ये 62 कैसे आया? 62 एक इंटरनेशनल नॉर्म है, बहुत जगहों पे 67 है, बहुत जगहों पे 62 है। ये 62 इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट नंबर, कि अगर इससे ज़्यादा इम्पैक्ट है तो हम उस फैक्टर को बोलेंगे सिग्निफिकेंट फैक्टर है। Universal है ये, Okay. 60%. This is what he was asking, कि why not 50, why not तो जो आप रिग्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, ये तो question है। क्या 3 चीज़ें देखनी है। पहला देखना है पी वैल्यू, दूसरा R square पी वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड कर लीजिए नल या ऑल्टरनेट। अगर ऑल्टरनेट है तो आर स्क्वायर देखिए, R square अगर पी वैल्यू नल आ गया तो फिर आर स्क्वायर मत देखिए, भूल जाइए। पी वैल्यू और आर स्क्वायर दोनों, पी वैल्यू मेरा ऑल्टरनेट आ गया, आर स्क्वायर मेरा 62 से ग्रेटर आ गया, तो फिर अपन रिग्रेशन इक्वेशन को देखेंगे। एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, कोरिलेशन क्यों नहीं किया। कोरिलेशन क्यों नहीं किया, यही रीजन है। Similarity not known question. एक्स और वाई की भाषा में बात ही नहीं करता, ये कहता है दोनों वेरिएबल हैं, टॉस की वजह से कलेक्शन बढ़ा या कलेक्शन की वजह से टॉस बढ़ा मुझे नहीं मालूम। हमको क्या जानना था, हमको जानना था कि कलेक्शन पे किसका असर है। ये कह रहा है कलेक्शन और टॉस आपस में रिलेटेड तो हैं, अब कौन किसको तंग कर रहा है मुझे नहीं मालूम। दैट इज व्हाई यू डोंट प्रेफर द कोरिलेशन टेस्ट। एवरीवन विथ मी, आप ये समझ लीजिए, इन द यूरोप, इन द यूएस रिग्रेशन एक पूरे साल का सब्जेक्ट है। जो आपने 2-2.5 मिनट में पढ़ा वो उस पर पूरा साल लगाते हैं। तो ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, जितना इसको पढ़िएगा उतना इसको मजा आएगा। और इंटरव्यू में पक्का पूछेगा रिग्रेशन, Regression, correlation. पूछते हैं। कोरिलेशन तो बहुत कम पूछेगा, रिग्रेशन बहुत ज्यादा पूछेगा। आगे बढ़ो। So what is regression equation used for in equation? एट द एंड ऑफ द डे तुम चाहते क्या थे, तुम चाहते थे एक ऐसा सिचुएशन कि तुम प्रेडिक्ट कर सको, ये अगर मुझे पता है, मुझे अगर कलेक्शंस का टारगेट पता है, एज अ टीम लीडर मुझे मालूम है कि मुझे बच्चों से 5,000 का कलेक्शन कराना है, तो मैं कितने का काम एलोकेट करूं, मैं ये मैथ से निकाल सकता हूं, राइट ना। वो इक्वेशन नहीं बता रही। कॉपी ये मेरा इक्वेशन निकल के आया। वो actually So if I know that my collections is 5,000, तो equal to 5,000 minus 14.3 is equal to 0.94 of work. तो मेरा work is equal to this divided by तो अगर मैं $5,360 का फाइल दूंगा बच्चों को, तो मेरा कलेक्शन 5,000 का हो जाएगा। या तो मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर दूं, या आज मैंने किसी बच्चे को $8,000 की फाइल दी है, तो आई कैन कैलकुलेट कि वो कलेक्शन कितना कर पाएगा। आर यू गाइस विथ मी? अगर मैंने हर बच्चे को $8,000 की फाइल दी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो $7,534 कलेक्ट कर पाएगा। रिग्रेशन इक्वेशन का यही इस्तेमाल है। पीपल
मेरी बात क्लियर है? देवांजन, ऋचा, वर्षा, विवेक, Yes, sir. सु- Yes. कृष्णा, हिमांशु, संतोष। Yes, sir. इंटरव्यू में पक्का पूछेगा, इससे कोई भी डाउट हो तो भैया पूछ लियो। आगे बढ़ो। यहाँ पे दो डेटा पॉइंट आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, वहीं पे यूज होगा ना, दो डेटा पॉइंट है, दो कंटिन्यूअस डेटा। दो कंटिन्यूस डेटा। हाँ, तो कंटिन्यूस डेटा को इंक्लूड तो कोई ऐसा करके कंटेंट यहाँ पे मेरे पास सिर्फ नाउ वी आर मूविंग इनटू CYDX। कोरिलेशन होगा ना, वो भी नहीं होगा। Y continuous, X discrete. Handling time versus gender. Handling time versus shift. Handling time versus team leader. सर यहाँ पे टीम लीड का भी रोल रहेगा। कुछ भी हो सकता है, हमको तो पता करना है। जब आप ऐसे सिचुएशन में हैं, पहला क्वेश्चन आपको जो आंसर करना पड़ेगा is whether you want to fix centering या आप वेरिएशन रिडक्शन का प्रोजेक्ट करना चाहते हो। वेरिएशन सब लोग ध्यान से देखिए जरा। मैंने ग्राफिकल समरी बनाया कलेक्शंस का। पी वैल्यू को देख के मुझे समझ में आ गया 0.05 से छोटा है, इसका मतलब y is नॉन नॉर्मल। ऑल्टरनेट ट्रू है, ऑल्टरनेट का मतलब डेटा मेरा नॉन नॉर्मल है। डेटा नॉन नॉर्मल होने का मतलब मुझे जो सेंट्रल टेंडेंसी देखनी है वो है मीडियन। सो अज्यूम करिए 8000 ये मेरा करंट मीडियन है। अ सिचुएशन दैट कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि मेरा कलेक्शंस $12,000 होना चाहिए। If 12,000 is my customer target, I can clearly see that our central tendency is not meeting customer target. Everyone, simple thought. Yes? Yes, sir. तो पहला प्रोजेक्ट जो हमको करना चाहिए वो होना चाहिए कि हम मीडियन को शिफ्ट करके टारगेट के पास लाएं या टारगेट के बियॉन्ड ले जाएं। मतलब सेंटरिंग जो है सेंटरिंग कब करना है? When your central tendency is not meeting your target, तो पहला प्रोजेक्ट हम सेंटरिंग का करेंगे। वहीं अगर सिचुएशन पलट जाए, मेरा करंट मीडियन 8836 है, जो समवेयर अराउंड ये मेरा 9000 है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ 8838। कस्टमर का टारगेट ये है। ये है मेरा मीडियन। हम ऑलरेडी कस्टमर जो मांग रहा था उससे बेटर कर रहे हैं, तो फर्दर सेंट्रल टेंडेंसी इंप्रूव करने का कोई सेंस नहीं है। तो आप वेरिएशन, ये जो अभी भी कुछ डेटा पॉइंट है जो 6000 से नीचे हैं, हम उनको सुधारना चाहते हैं। ऐसे कंडीशन में आप वेरिएशन रिडक्शन का प्रोजेक्ट करोगे। When central tendency is better than target. People with me so far? Yes, sir.
target is overachieved in that case. If we are looking at the VQ performer or VQ challenges, do you think that the stakeholder will allow to perform the project? So if I have a business process जहाँ target is 6,000, my central tendency is 8,800, I still have lot of data जो less than 6,000 है. Would you not want to improve them? Why will the stakeholder not agree? अभी भी मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टारगेट नहीं अचीव कर रहे हैं. उन बच्चों को तो 6,000 के ऊपर लाना होगा ना. तो वैसे केस में आप वेरिएशन रिडक्शन का प्रोजेक्ट करोगे. सब लोग ये कलेक्शंस का डेटा ले प्लीज, और टाइम ऑन सिस्टम के डेटा को एनालाइज करो. इफ आई एम टेलिंग यू कि मेरा टारगेट इज 140 आवर्स, मुझे बताइए सेंटरिंग का प्रोजेक्ट होगा या वेरिएबिलिटी का प्रोजेक्ट होगा? 140 आवर्स. पहला क्वेश्चन, इसको देख के क्या समझ में आया? डेटा नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल? नॉन नॉर्मल. क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट ट्रू है. सो वी हैव कंक्लूडेड दैट डेटा इज नॉन नॉर्मल. ठीक साहब. नॉन नॉर्मल होने का परिणाम क्या हुआ? मीडियन देखेंगे. तो मुझे पता चल गया कि 153 इज माय करंट मीडियन. इफ योर बिजनेस, आप एनआईटी में काम करते हो, एनआईटी का टारगेट है कि हर बच्चे का वर्किंग आवर 140 होना चाहिए. आप ऑलरेडी 140 से बेटर कर रहे हो, तो वेरिएशन का रिडक्शन का प्रोजेक्ट करो भाई. अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेस देन. एवरीवन विथ मी? ऑनलाइन folks? Yes, sir. Yes. Let's try another index. I'm doing a project on right party contact. कस्टमर का टारगेट है 450, 450. बताइए कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी का या वेरिएबिलिटी का? क्यों? मीडियम तो मेरा पहला सवाल 0.05 से बड़ा है या छोटा है? 0.05 से छोटा है, मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. इसका मतलब मैं मीडियन देखूंगा. 371. सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 371 कहीं यहाँ है. ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ, आई एम नॉट बेटिंग माई नेट. तो ये मेरा मीडियन है. मेरा टारगेट कितना है? 450. इतना ही है इलाका जो मैं पास हूं, बाकी सब फेल हो. एवरीथिंग लेस देन 450 इज फेल. Right. इन सच केस आप पहला काम करेंगे कि आप अपने मीडियन को फ्रॉम 371 यू मे वांट टू टेक इट टू 450 या थोड़ा ज्यादा. टारगेट अचीव. एवरीवन विथ मी? सेंटरिंग ही हुआ ना इसमें. Yes. वेरिएशन ही होता है. मैंने गलत किया. सेंटरिंग ही बोला. So now I am moving to y containers x discrete. हमने डिसाइड कर लिया कि हमको सेंटरिंग पे काम करना है. दो सिचुएशन. एक सिचुएशन जब आपका y नॉर्मल डेटा होगा, दूसरा सिचुएशन जब y नॉन नॉर्मल डेटा. y नॉर्मल है तो हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट्स हैं ऑफ 1 सैंपल t, 2 सैंपल t, 1 रे एनोवा,
एसेट्रा। इनको हम पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। सिर्फ यही सकती है, सॉरी, यही 3 पैरामीट्रिक टेस्ट है। आपको 3 पढ़ना है। नॉन नॉर्मल है तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करेंगे। तीन टेस्ट है। वन सैंपल टी टेस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय वन सैंपल साइन। Two sample T will be replaced by Mann-Whitney. One way ANOVA will be replaced by Moots-Whitney. पैरामीट्रिक टेस्ट का दूसरा नाम मीन टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक का दूसरा नाम सर इससे पहले जो था वो जिसमें हम मीडियन कंसीडर कर रहे थे, तो वो वाले में तो 0.05 से बड़ा था ना? छोटा था। नहीं, 0.018 तो छोटा 0.05 से तो बड़ा हुआ ना? नहीं, छोटा छोटा था ना। 5% और ये 1.8%। 0.05। हाँ, तुम्हारा वैल्यू आया है 0.018। तो 0.5 तो वो 0.1 है। ये आपका 1.8% हो गया, वो आपका 5% है। चलो मुझे भी लग रहा था एक फर्स्ट क्लास में, मुझे भी लग रहा था वो बड़ा है, मैंने ऐसे देखा उसे। चलो मुझे भी लग रहा था। And before we jump into these tests, एक बहुत important concept है जो आपको समझना है, refer to as confidence interval. When to choose which confidence interval. अक्सर हमारी लाइफ में सैंपल अवेलेबल रहता है और हमको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है पॉपुलेशन के बारे में। Does this statement make sense to you? सेंट्रल पॉपुलेशन मुझे तुम्हारा मेडिकल कंडीशन जानना है, तो तुम्हारे शरीर से पूरा खून निकाल लूं कि एक बोतल खून निकाल लूं? सैंपल ही निकालूंगा ना। सारा खून निकाल लूंगा तो क्या होगा? सर जरूरत नहीं पड़ेगी। फिनिश वाला So you are essentially looking at a sample data, but your subject of interest is what? Population. यस घर में गेस्ट आए, 25-30 कप चाय बनी, अम्मा ने उसमें से 1 टीस्पून चाय निकाला टू टेस्ट कि भैया चाय कैसी बनी है। वो सैंपल निकाला क्या? सैंपल। जजमेंट किसके बारे में पास करना चाहती है? 25 उस 25 कप्स ऑफ टी के बारे में। करेक्ट। यहाँ तो लाइफ आसान है क्योंकि होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है शुगर इन हॉट वाटर। जितना चीनी उस चाय के वो टीस्पून में होगा उतना ही बाकी चाय में भी होगा। बट लाइफ ऐसा नहीं है, बिकॉज आनंद इज फ्रॉम उत्तराखंड। कैन आई से दैट हर चश्मा पहनने वाला आदमी उत्तराखंड का होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन बड़ा आसान है। चाय वाला एग्जाम्पल भी बड़ा सिंपल है, बट लाइफ में हर चीज वैसे ही होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। आप सैंपल इस्तेमाल करते हैं टू बी एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट योर पॉपुलेशन पैरामीटर। आपके पास सैंपल का मीन अवेलेबल है। मैं मारुति हूं, मैंने एडवर्टाइज किया पूरी दुनिया को कि प्लीज वैगनआर खरीदो, 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी।
आई एम द हेड ऑफ मार्केटिंग, मुझे डर लग गया कि साहब बोल तो रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, पब्लिक तो बैंड बजा देगी। सो आई डिसाइडेड टू गो टू द पुणे प्लांट, टेक आउट अ फ्यू कार्स, उनको रन करके देखूंगा टेस्ट माइलेज टू सी इफ 25 का माइलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो आई वेंट आउट, वहाँ से मैंने 10-20 गाड़ियाँ निकाली, उन गाड़ियाँ चलाई और मेरे पास माइलेज का डेटा हो गया, समझिए 40 डेटा पॉइंट। ये तो सैंपल ही है, सैंपल का मीन निकल गया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मीन। तो जब आपके पास सैंपल का मीन अवेलेबल है, पॉपुलेशन का मीन का एस्टिमेट निकालना मैथमेटिकली पॉसिबल है। उस रेंज को वेयर योर पॉपुलेशन पैरामीटर इज गोइंग टू लाई, उस रेंज को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। लेट्स डू इट अगेन। मैं कह रहा हूं आपके पास हैंडलिंग टाइम का डेटा है 1 महीने का, बिकॉज वो सैंपल डेटा है, तो सैंपल डेटा से मैं मीडियन निकाल सकता हूं सैंपल का, सैंपल का मैं उसको x टिल्डा कहता हूं। बट सवाल क्या था, इंटरेस्ट किस चीज का था आपका, कि ओवरऑल हैंडलिंग टाइम पॉपुलेशन, मतलब ईटा क्या कहेगा, पॉपुलेशन का मीडियन क्या रहेगा। तो सैंपल का मीडियन देख करके आप कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट कर सकते हो कि पॉपुलेशन कहां राइज करेगा। वो कभी एक वैल्यू नहीं होगा, वो हमेशा एक रेंज होगा। उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, वो रेंज जहां पॉपुलेशन पैरामीटर लाई करे। मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल भी होगा, मीडियन का भी होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का भी होगा, एसेट्रा एसेट्रा। तो जब आप ग्राफिकल समरी जैसा कुछ करते हैं, if you see this value here, 95% confidence interval of mean, कह रहा पॉपुलेशन कहाँ लाई करेगा, बोल रहा पॉपुलेशन लाई करेगा फ्रॉम 351 to 381। पॉपुलेशन कहाँ लाई करेगा फॉर मीडियन 359 to 393। स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल है क्या, पॉपुलेशन। तो सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीडियन, पॉपुलेशन मीडियन, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। मिल रहा है क्या आपको, सैंपल का डेटा, तो आप निकालेंगे क्या, ये, उससे निकालना है मुझे ये, क्योंकि मुझे सैंपल में इंटरेस्ट नहीं है, टारगेट ऑडियंस में मुझे तो भैया पॉपुलेशन में इंटरेस्ट है कि वो चाय, जो 25 कप चाय मेरे गेस्ट को जा रही है, वो चाय कैसी है। अब मैं उसमें थोड़ी नहीं इंटरेस्टेड है कि वो चाय के स्पून में चीनी कितनी है। शी इज इंटरेस्टेड कि वो जो चाय अभी गेस्ट को सर्व होने वाली है, वेदर दैट टी इज गुड और नॉट। एवरीवन विथ मी सो फार? रिचा, देवांजन, वर्षा। सर उससे पहले तो फिर सॉरी पक्का पूछेगा इंटरव्यू में, इसलिए पूछ लो जितनी बार पूछना है। सर कॉन्फिडेंस लेवल फिर क्या सैंपल कैलकुलेटेड फिर चुटकुला मत शुरू करो। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है, दोनों अलग अलग शब्द है। So can you repeat this confidence interval? ग्राफिकल समरी में जो नीचे I am saying you mostly have sample data in life, but your subject of interest is always population. मेरे BPO में पर डे लगभग 2000 क्लेम एक्शन हो रहे हैं। इस 2000 में से मैंने 25 ऑडिट करा, और इस 25 ऑडिट से मुझे क्वालिटी स्कोर मिल गया। किसका मिला, सैंपल का मिला। जजमेंट क्या दे रहे हो, आर यू सेइंग कि 25 ऑडिट का क्वालिटी स्कोर है, नहीं बोलते हो प्रोसेस का क्वालिटी स्कोर है। सैंपल ऑडिट क्या किया था, सैंपल। जजमेंट क्या दे रहे हो, बोले पॉपुलेशन। तो जो सैंपल से रिजल्ट आया था तुम्हारा,
आई गॉट सैंपल का मीन, माई इंटरेस्ट इज सैंपल का पॉपुलेशन का मीन। तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला अवेलेबल है जिससे आपको रेंज पता चल जाए, where the population where the population is expected to lie. उस रेंज को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। सारा हाइपोथेसिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन दिस वेरी सिंपलिस्टिक लॉजिक कि वो सब चीजों का आप उसको देंगे सैंपल, वो क्या इस्तेमाल करेगा? पॉपुलेशन। हम ये कह रहे थे कि हमारे पास 3 टेस्ट हैं, एक जिसको हम कह रहे हैं 1 सैंपल टी, एक जिसको हम कह रहे हैं 2 सैंपल टी, एक जिसको हम कह रहे हैं 1 वे नोवा। One sample t test is done when you wish to compare mean to a standard. I work for Maruti. मैंने मारुति का टेस्ट रन लिया था। I want to see whether the mileage of the test run is equal to 25 किलोमीटर पर लीटर। क्यों 25? क्योंकि वही मेरा एडवर्टाइज्ड वैल्यू है। ये टाइम ऑन सिस्टम का डेटा है अभी हमारे पास। इफ यू सी C4 मेरे पास टॉस का डेटा है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास टारगेट है कि हर बच्चा ऑफिस आना चाहिए 140 घंटा। तो मेरा टारगेट क्या है? 140। I want to compare whether the mean is equal to 140 or not. Time on system, perform hypothesis test, 140. मीन मत बोलिए। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है। क्या मतलब हुआ कॉन्फिडेंस इंटरवल का? कि तुम्हारा पॉपुलेशन का मीन क्या है? 148 से लेके 157। ये टाइम तुम्हारे बच्चे ऑफिस में ले रहे हैं। सवाल क्या पूछा था तुमने? क्या मीन 140 है? क्या दिख रहा है मीन तुम्हारा? 148 से लेके 157। दिस इज योर करेक्ट मीन। इज इट इक्वल टू 140? नो, इट इज मच मोर देन 140। इसलिए ऑल्टरनेट आया। अगर इसके बीच का सवाल पूछोगे, अगर पूछ के देखो इज मीन इक्वल टू 150, तो बोलेगा यस। आर यू विद मी? जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 140 घंटे तो कम से कम ऑफिस आए, वो तो बेचारे उससे ज्यादा आ रहे हैं। पीपल विद मी? सर एक चीज 2 मिनट। साहब चेंज करें इसको, 150 कर दें। ओके, पी वैल्यू देखो कहाँ पहुंच गए। क्योंकि सवाल क्या है तुम्हारा? मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहा है मेरे टीम के बच्चे 148.7 से लेके 157.48 तक आ रहे हैं। अगर 150 इसके बीच में आ रहा है तो बोलेगा नल। कोई भी वैल्यू से ज्यादा या इससे कम लोगे तो बोलेगा ऑल्टरनेट। ऑनलाइन फोक्स विथ मी? Yes, sir. साहब टॉस हटाइए, कलेक्शंस कर लीजिए, ये हटा दीजिए, परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्ट। ओके, नाउ आई एम लुकिंग एट कलेक्शंस का डेटा। क्या बोल रहा है कलेक्शंस? कहाँ से कहाँ तक है? बोले 8822 से लेके 9000
9519 तक है। ये बीच में ऐड करना है। टारगेट वहाँ है। तो वन सैंपल टी टेस्ट का इस्तेमाल दो है, एक व्हेन यू वांट टू कंपेयर द मीन टू अ स्टैंडर्ड, या सीधा सीधा यू ओनली वांट दो इस्तेमाल है। टारगेट दे दोगे तो कंपेयर कर देगा टारगेट से, या तुमको सीधा सीधा टारगेट ही बनाना है। अभी तुम सुमित हो, मैंने तुमको माइग्रेशन में लगाया, मैंने बोला सुमित इंडिया माइग्रेट कर लो इसको, तुमने माइग्रेट करके लिया। अब तुमको अपनी टीम का टारगेट सेट करना है। जो हम कन्वेंशनल लिंकी पिंकी बॉक भी करते हैं पढ़े लिखे आप लोग मैनेजर्स, उसके अलावा पढ़े लिखे लोग कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं कि सर हिस्टोरिकल डेटा दो। मैं क्लाइंट को बोलूँगा भैया दिखाओ तो पहले क्या कर रहे थे। उसने मुझे डेटा दिया, उस डेटा का मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला। क्या बोल रहा है डेटा? डेटा बोल रहा है कि हिस्टोरिकली आई हैव बीन डूइंग $8,822 से लेके $9,519 तक का कलेक्शन। क्या टारगेट लोगे? मैं कोशिश करूंगा इस पे मनाने की कस्टमर को, कस्टमर मुझे पुश करेगा ये वाला लेने की, लेकिन बाहर तो नहीं लूंगा। नहीं। एज इज वेयर इज माइग्रेशन अगर है कि जैसा तुम कर रहे हो यूके में वही लाके कॉपी पेस्ट कर दूं, तब तो ऐसे ही होगा। अगर तुम कह रहे हो कि मैं सुमित हूं, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है कलेक्शंस का, आइडली हम डीपी वाले तो ये बता रहे हैं ना कि जी 80 तोप हैंगे जी, मैं जेनपैक्ट हूं, मैं इतने साल से मैंने 500 लोगों का कलेक्शन संभाला हुआ है, तब तो मैं एज अ कस्टमर कहूंगा कि देख यार हम तो एक्सपर्ट नहीं, हम तो इंश्योरेंस वाले हैं, हम तो इतना ही कर पाए, तुम तो एक्सपर्ट हो ना इंश्योरेंस में कलेक्शंस के, एक बार बता तू क्या करेगा। ये तो मेरा एज इज प्रोसेस है, इससे कम में तो मैं नहीं मानूंगा। तो टारगेट सेटिंग के इस्तेमाल में हो जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल का इस्तेमाल। एवरीवन सर एक वो थोड़ा इसके लिंक कर रहा था मैं, गोल स्टेटमेंट जब था हमारा, अभी भूल जाइए, ठीक आएगा उसका समझ थोड़ा सा अब यही नीरज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है सिक्स सिग्मा का, दिस इज योर करंट परफॉर्मेंस, ये कलेक्शंस का क्या है, ये आज कर रहे हो आप, अच्छा। तो टारगेट क्या रखोगे साहब? ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो तुम ऐसा बोल सकते हो क्या कि 9400 कर दूंगा आपका परफॉर्मेंस? मैं तो बोलूंगा हम ऑलरेडी कर रहे हैं भाई। So goal of a Six Sigma project has to be mandatorily outside confidence interval. 10,000 and above. Everyone with me? Online folks? सर प्रणव सर इसका भी कुछ कैलकुलेटिव मेथड है कि अगर मेरा इंटरवल मिल गया, इनमें से कौन सा पहले यहाँ तक समझ चूज जाओ, करना? पहले यहाँ तक समझ जाते हैं, फिर अगला वाला सवाल पूछते हैं। Let's look at another index. नहीं, डेटा दूसरा पड़ेगा। Now I have data from a biscuit manufacturing company. ठीक है साहब? C2 is my production data. इस पे वन सैंपल टी टेस्ट कर ले भाई। स्टैट्स, बेसिक स्टैट्स, वन सैंपल टी टेस्ट टी। हाँ, कलेक्शन हटा पहले बैक स्पेस करके खत्म कर। प्रोडक्शन ओके। मैं एक नई फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ सुमित, सेम मशीनें दूंगा, सेम किस्म के लोग दूंगा, कितना प्रोडक्शन करके दोगे? सेम और वी आर सपोज्ड टू सेम। अगर ये एज इज वेयर इज माइग्रेशन है तो भैया मैं सुधार कैसे करूंगा? सेम घटिया मशीनें दोगे, सेम तरह के लोग दोगे, तो वही प्रोडक्शन कर सकता हूं जो आज कर रहा हूं।
Everyone with me? With the current machinery, I will be able to do 2616, 27. KG. देवांजन, Yes, sir. तुम कम का टारगेट लोगे कि ज्यादा का टारगेट लोगे? मैं तो कम का ही लूंगा Sir, भाई। obviously, कम का ही लेंगे। कम का ही। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि 266 पे अपने बॉस को मना लूं। मेरा बॉस पढ़ा लिखा है, वो कह रहा है नहीं तू ज्यादा कर। तो एक काम करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ये 3 मंथ का टारगेट। कर सकते हैं। सर BAU आ जाएगा तो अभी माइग्रेशन तक यहीं रहने दो, उसके बाद 276 पर जा दूंगा। इफ यू आर डूइंग अ 6 सिग्मा प्रोजेक्ट, अगर प्रणय हायर हुए इस फर्म में, प्रणय कह रहे हैं कि सर हम तो तोप हैं सर, मैं तो सर मैजिशियन हूं, तो मैजिशियन सेम परफॉर्मेंस तो नहीं कर सकता है। आप कह रहे हो जी मैं सुमित हूं, मैं कंसल्टेंट हूं, तो भैया सेम काम करने के लिए तो मुझे सुमित की कंसल्टेंट की जरूरत है नहीं, तो मुझे तो तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या चाहिए इसके बाहर। सो गोल ऑफ अ 6 सिग्मा प्रोजेक्ट करेक्ट ना? गॉट इट सर। नहीं तो फिर फायदा क्या होता है? एवरीवन विथ मी? सो व्हेन यू वांट टू कंपेयर मीन टू अ स्टैंडर्ड, यही इस्तेमाल करोगे आप इंप्रूव और कंट्रोल फेज में। जब तुम हैंडलिंग टाइम का प्रोजेक्ट कर रहे हो, you are going to achieve some goal, कैसे वेरीफाई करूं? अगर मीन बेस्ड टारगेट है तो कौन सा एम्पलीटी टेस्ट है? कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन क्यों इस्तेमाल करूं? गोल स्टेटमेंट क्रिएट करने में, बेंचमार्किंग करने में, बेसलाइनिंग करने में। Everyone with me? तो टेक्निकली ये करता क्या है? ये वाला अचीव करने के लिए इट कैलकुलेट्स the confidence interval of mu, population mean, and if your target falls between this तो null, else alternate. सुमित करके देख। Target. Assume करो as a business I have given you a target of 250 kilos. 250. एक बार चेक कर लो, साइड कर लो थोड़ा। टारगेट अगर इसके बीच में होगा तो नल आएगा, अब ऑल्टरनेट कर दे। ओके, ऑल्टरनेट एक बार कर दे, कोई वैल्यू डाल दे जिससे null. So that is what I have written. It calculates the confidence interval of mu. अगर उसके बीच में आया तो null, बाहर गया तो Alternate. Everyone with me? दूसरा टेस्ट है हमारे पास, टू सैंपल टी। When you wish to compare two samples, mean of two groups. Null बोलेगा mean of one equal to mean of two. Alternate बोलेगा mean of one is not equal to mean of two. करिए साहब, इसको और इसको कंपेयर कर दीजिए। स्टैट्स
बेसिक स्टैट्स 2 सैंपल टी टेस्ट। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बोथ सैंपल्स आर इन वन कॉलम, नहीं है ये तो अलग अलग कॉलम अलग है। कॉलम में each sample has its own column, correct? Sample 1 machine A, कोई भी एक ले ले, machine B, okay. P वैल्यू क्या है? कह रहा दोनों का मीन इक्वल नहीं है, करेक्ट? समझ नहीं आया यार, एक काम कर, दोनों पे 1 सैंपल टी टेस्ट करके देखते हैं। फटा भाई, मशीन ए मशीन बी करके, नहीं ये दोनों डालो, यहीं पर मशीन बी भी डालो, सारे डालो, बी सी डी सब डालो, सबका कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ते हैं जरा। ओके, अब जरा इसको ध्यान से देखो, मशीन ए जो है, उसका ब्रेकेज कहां से कहां तक है? 2 से लेके 2.4 तक। सो आई एम कॉलिंग दिस एज 2 से लेके 2.4। अगला वाला कहां से है? 1.6 से लेके 2.00 तक। ओ 1.6। तीसरा वाला 1.48 से लेके 1। एक बेसिक लॉजिक समझ लेना, एक काम करिए तो स्टैट्स पे चलिए, स्टैट्स अनोवा 1 वे अनोवा ABCD सबसे लेकर नहीं करने देगा, इस पुराना वाला लिमिट नहीं है। ग्राफ इंटरवल प्लॉट ये वाला, ओके साइड स्लिप के लिए। अच्छा ये चेंज हुआ है नए वाले एग्रीटर में, ओके। सब लोग जरा ध्यान से इसको देखो, दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। मशीन डी का कॉन्फिडेंस इंटरवल यहां है, मशीन ई का कॉन्फिडेंस इंटरवल यहां है, मशीन बी का यहां है, सी का यहां। एक क्वेश्चन है, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं? दिस एंड दिस आर नॉट ओवरलैपिंग, ये हमेशा ऑल्टरनेट आएगा अगर 2T टेस्ट करोगे तो। डी और ई का भी ऑल्टरनेट आएगा, इसका भी ऑल्टरनेट आएगा, इसका भी ऑल्टरनेट आएगा, इसका दोनों का नल आएगा। ये ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ऑनलाइन पीपल? थॉट बहुत सिंपल। सो अज्यूम करिए एक का ब्रेकेज 2 से लेके 2.4 तक है, दूसरे का ब्रेकेज 2.3 से लेके 2.9 तक है, तो मैं इसको ओवरलैप कह रहा हूं। इसका ब्रेकेज, इसको टच करवाएं, इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं दिखा रहा। पुराने वाला इसका देखिए, यहां देखिए, इसका पहले वाले का पहला वाला शुरू कहां से हो रहा है? 2 से लेके 2.02 से लेके, इफ आई एम कॉलिंग दिस एज 2.02, इट गोज अप टू 2.4। ये मशीन ए है। मशीन बी कहां से शुरू हो रहा है? 1.6 से लेके 1.69 से लेके 2.00 पे खत्म हो जा रहा है, ओवरलैप नहीं है। ये खत्म हो रहा है 2.00 पे, ये शुरू हो रहा है 2.02 पे। तो अगर मैं ए और बी का 2 सैंपल टी टेस्ट करूंगा तो बोलेगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। थर्ड वाला 1.69 से 2.0 था, ये 1.4 से लेके 1.8 तक है, तो यहां थोड़ा सा ओवरलैप है।
तो इफ आई एम कंपेयरिंग बी एंड सी, करके देख भाई। हटा दे बी एंड सी, ओवर सी करते हैं। ओके, नल क्यों? क्योंकि ओवरलैप था। ऑनलाइन फोक्स विथ मी, रिचा, देवांजन, आयुष। Yes, ma'am. Yes. The two-samplity test is being used when you wish to compare mean of two groups. लेकिन technically ये क्या कर रहा है? ये it will draw confidence interval of both groups if they overlap. थोड़ा सा भी तो null, और else alternative. नहीं तो alternate. सेम है वन वे ओवर। दो तक कर रहे थे 2D टेस्ट था, दो से ज्यादा कर लिया तो वन वे ओवर। सो कंपेयर मीन ऑफ ग्रेटर देन टू ग्रुप्स। नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आप लोग नोट्स बनाने में बिजी हैं तो बना हुआ नोट्स मिल जाएगा। नल बोलेगा mean of 1 is equal to mean of 2 is equal to mean of 3 up to as many means as you have. Alternate बोलेगा नहीं सर, एक तो कम से कम ऐसा है जो मिलता है mean of at least 1. ये फोटोग्राफ देखिए, ABC वाला जो है अगर सारे के सारे ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो नल दिख ही रहा है। डी और ई में कोई लेना देना नहीं है, डी और एफ में कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं अनोवा करूं तो क्या होगा? ऑल्टरनेट आएगा। ऑल मस्ट ओवरलैप। अनोवा पास होने के लिए क्या करना है? नल के लिए ऑल मस्ट ओवरलैप। सो B, C और E अगर इनका होगा तो आपका नल आएगा, बाकी में ना मुझे तो बी और सी में भी ए और बी में भी कुछ बजड़ दिखा था। नहीं, और B में भी है, B, C और E। बी सी ई का है ई, हाँ करके देखो। पहले एक बार पूरा कर लेना। स्टैट्स अनोवा वन वे, सारे सिलेक्ट कर लो, ए बी सी डी B, C, E करेगा ना? नहीं, एक बार सारा करके ऑल्टरनेट कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ओके, ई वैल्यू 0 ऑल्टरनेट। हम ये कह रहे हैं अगर एक भी ऐसा होगा जो ओवरलैप नहीं करेगा तो ऑल्टरनेट आ जाएगा। यहाँ तो बहुत सारे हैं। एवरीवन, अब मुझे जरा सॉल्यूशन डिजाइन बताओ यार। देवांजन, यही फोटो आ गया तेरा बन के, यू आर द कंसल्टेंट। ये ब्रेकेज का डेटा है, किस मशीन से कितना टूटा। मशीन, सबसे खराब मशीन तुझे कौन सी लग रही है? अगर ये टूटने का डेटा है तो सबसे खराब मशीन तो यही लग रही है, Right, sir. और सबसे अच्छी मशीन तो ये लग रही है। मैंने क्या किया था, मैं उनके पास पहुंचा, ये फोटो बनाई और उनको बोला कि जब तक मैं ना बोलूं ना तब तक ये मशीन बंद कर दीजिए। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, पहले काम कर लो, कल से मशीन एफ पे प्रोडक्शन बंद। तुम सुसरे तुम्हें तोड़ के मेरा पूरा मैच खराब किए हुए हो। तुम्हें को बंद कर दूंगा, कुछ तो घटेगा मेरा टूटना। ये पता करो क्या कर रहा है, इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस का कॉपी पेस्ट करना है। उसी फैक्ट्री में एक ऐसी मशीन है जो बिल्कुल
1 के आसपास तोड़ रही है, एक जो है छत पे है। और सबसे सरप्राइजिंग बात बताऊं, सबसे महंगा मशीन था ये। तो हम तो सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक करना चाहते हैं, कौन से वेंडर का सामान इस्तेमाल हो रहा है, कौन इसका सुपरवाइजर है, कौन सी शिफ्ट में ज्यादा टूट रहा है, हम तो सब कुछ देखना चाहेंगे। इसीलिए आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो, हमको तो कॉजालिटी ढूंढना है। यही खेल है। पंद्रह मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऑन द अदर साइड वी कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ठीक है एवरीवन? Okay. So prior to going to the break, we started our conversation to say that जब हम CYDX वाले एरिया में हैं, कुछ काम से निकलो। centering was the project we wanted to take up, and we had Y which was normal data. तो हमारे पास 3 टेस्ट हैं, 1T टेस्ट, 2T टेस्ट, 2T टेस्ट and one way ANOVA. These are all mean based tests. 1T टेस्ट में आप you were looking at comparing mean to a standard. 2T test में you were comparing mean of 2 groups. One way ANOVA, multiple groups. When you wanted to compare mean of greater than 2 groups, तो आप one way ANOVA कर रहे हैं। वन वे और बेसिकली इसलिए भी चेक कर लेते हैं व्हेन वी हैव वन मैट्रिक्स टू सी डिपेंडेंसीज अबाउट हाँ, यही अगर मीडियन करना है तो 1T टेस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय वन सैंपल साइन. हियर यू आर कंपेयरिंग मीडियन टू अ स्टैंडर्ड. टू टी टेस्ट किया था दो ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए, दो ग्रुप के मीडियन को कंपेयर करने के लिए. वी विल यूज मैन बिटवीन. मल्टीपल ग्रुप्स के मीडियन को कंपेयर करना है तो यू हैव अ टेस्ट कॉल्ड मोड्स मीडियन. ये सब स्टैट्स बेसिक स्टैट्स में है सर. कंपेयर मीडियन ऑफ मीडियन वाला सारा इज ऑन नॉन पैरामीट्रिक. करके देख लीजिए. वन सब डिफाइन प्रोडक्शन टेस्ट मीडियन, अच्छा वी कैन चूज कॉन्फिडेंस हाँ. इंटरवल. टेस्ट मीडियन कुछ भी डाल दो, 250 डाल दो टारगेट. 250 किलो. ओके. पी वैल्यू इज लेस देन 0.5. टारगेट हटा दो एक बार. कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्लिक कर दो. ओके. अब आपको 95%, 93.88, 95.57 पे CI क्या है वो निकाल के दे दिया. Everyone, are you clear with this? What is interpolation? 95% पे दिया this one, 95.57 पे दिया कॉन्फिडेंस इंटरवल, 93.88 पे दिया. Ideally we will use 95%.
If I wanted to compare it to a target, I am simply clicking here, test median डाल दिया. टूटी टेस्ट का रिप्लेसमेंट करिए मैन विटनी. स्टैट्स कैंसिल. स्टैट्स नॉन पैरामीट्रिक मैन विटनी मशीन ए वर्सेस मशीन बी. ओके कॉन्फिडेंस p value is greater than 1. 0.05 से बड़ा है तो मीडियन ऑफ ग्रुप ए एंड मीडियन ऑफ ग्रुप बी सेम है. Null है तो this is not equal. Can you repeat this? श्योर. चलो स्टैट्स नॉन पैरामीट्रिक. So this is arbitrary. How to read the details or what? सीधा सीधा पी वैल्यू देखो. पहला वाला जो पी वैल्यू है वो 0.537 है. 0.05 से कंपेयर किया. नल ट्रू है. नल क्या बोल रहा है? नल आपको बता रहा है दोनों का मीडियन इक्वल है. इक्वल है. सर ये वैसे जीरो क्यों आ रही टेस्ट में? नहीं समझ. ऊपर जो नल हाइपोथेसिस और पैटर्न हाइपोथेसिस जहाँ पे हमने टिक मार्क करा है वो. This is what it is telling us. ये तो Result नल अल्टरनेट क्या कहता है वो बता रहा है. ओके Difference between both the median is equal to 0. Alternate बोल रहा है difference between both the median is not equal to 0. Modes median करिए. Stats non-parametric modes median. Mode median is for Total breakage versus p value p value is is 1.3. greater than 0.05 meaning median सब बराबर है. Median अच्छा ओवरलैप कर रही है. मीडियन आर ऑल इक्वल. नहीं मीडियन इक्वल नहीं है बट ओवरलैप कर रहे हैं. मीडियन ये भी तो आ रहा है ना. Everyone thought बहुत straightforward है. मुझे चेक करना है मेरा y नॉर्मल है तो मैं मीन वाले टेस्ट करूंगा जिसको हम पैरामीट्रिक टेस्ट भी कहते हैं. y मेरा नॉन नॉर्मल है तो हम मीडियन वाले टेस्ट करेंगे. जो नॉन पैरामीट्रिक Look at this very carefully now. कलेक्शन डेटा. मेरे प्रोजेक्ट का y मैंने इसको बनाया. मेरा y कंटिन्यूस है. ये मेरा x डिस्क्रीट है. मेरे पास ग्रेटर देन 2 लेवल्स हैं. एवरीवन दिख रहा है ये? टीम लीडर मेरे पास 2 से ज्यादा है. तो अगर मेरा y नॉन नॉर्मल है तो मैं कौन सा टेस्ट करूंगा? नॉन नॉर्मल है डिस्क्रीट का टेस्ट होगा नॉन पैरामीट्रिक और मोड स्विच नहीं होगा. मोड्स वेरिएबल. टाइम ऑन सिस्टम कंटिन्यूस डेटा है. y कंटिन्यूस x कंटिन्यूस कौन सा टेस्ट? y continuous x continuous.
ये मेरा होगा वन वे नोवा रिग्रेशन। रिग्रेशन। रिग्रेशन के लिए हमारा अच्छा मेरे पास एक डेटा है वर्क का विच इज अगेन इन डॉलर्स, फिर से एक्स कंटिन्यूस, कंटिन्यूस डेटा तो कौन सा टेस्ट? रिग्रेशन। रिग्रेशन एवरीवन विथ मी? कंटिन्यूस। Yes. और अगर यही मेरा y नॉर्मल होता तो मूड्स मीडियन की जगह पे कौन सा टेस्ट करते? वन वे नोवा। वन वे नोवा। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, आई हैव अ फैक्टर कॉल्ड प्रीवियस एक्सपीरियंस, 3 लेवल है, कौन सा टेस्ट? 3 पे ये मेरा डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट के लिए हो जाएगा नॉन पैरामीट्रिक और ये हो जाएगा मेरा मूड्स। मूड्स मीडियन। मूड्स अगर ये नॉर्मल होता तो कौन सा टेस्ट होता? वन वे नोवा। नोवा टेन्योर, फिर से मैंने फिल्टर चेक किया, फिर 2 से ज़्यादा लेवल है, सेम कहानी। जेंडर, मेल या फीमेल, बाइनरी है कौन सा टेस्ट? विटनी। मैन विटनी। और अगर नॉर्मल होता तो कौन सा टेस्ट होता? टू सैम्पलिटी। टू सैम्पलिटी। पीपल, समझ आ रहा है? ये प्रैक्टिस ही होगा, याद भी क्या। मेरे पास शिफ्ट 3 2 से ज़्यादा है, सेम कहानी। सेम। नॉट नो प्रोसेस नॉलेज, परसेंटेज का कोई टेस्ट नहीं होता है, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में या किसी और तरीके से। बाइनरी या मतलब बाइनरी इसको नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर में भी आपके पास कोई टेस्ट नहीं है, तो आपको इसको Bucketing पास करनी पड़ेगी। बकेटाइज करना पड़ेगा। ओके। मैरिटल स्टेटस, मेरे पास मैरिड सिंगल है, फिर 2T टेस्ट मैन बिटनी। अगला मेरे पास एजुकेशन है, ये भी 3 है। 3 है। वन वे नो मूड्स विटनी। आर यू गाइस गेटिंग बेटर एट दिस? देवांजन समझ में आ रहा है? Yes, sir. रिचा? Yes. वर्षा? Yes, sir. विवेक? Yes, sir. आयुष? Yes, sir. एक काम करिए, आई एम ब्रेकिंग यू गाइज इनटू स्मॉल ग्रुप्स। मुझे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके दे दीजिए, बिस्किट वाली। कोई भी डेटा उठाइए, मैं आप लोगों को मैं 3 ग्रुप्स में तोड़ देता हूँ, आप लोग इकट्ठा कर लीजिए। देयर आर 2 रूम्स आई एम क्रिएटिंग। या 3 रूम कर दूं? नहीं, 2 ही करता हूँ। Sir, put me in room 1, please. नाम बता दीजिए प्लीज। Vivek. ये चेक करेंगे कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। डेटा टाइप डेटा टाइप, फिर उसके बाद चेक करेंगे एक्स क्या है, वाई। आई एम मूविंग यू गाइज इनटू ग्रुप्स नाउ, और अब रूम खोल रहा हूँ। टेक 15 मिनट्स, मुझे किसी भी एक डेटा पे वो टेस्ट आइडेंटिफाई करके दे दीजिए। ओके?